السلام علیکم۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آپ کی فرمائش پر لے کر آیا ہوں۔ شتر گربا یہ ایک شعری عیب ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ صرف شعری عیب نہیں ہے بلکہ یہ کم علمی کی دلیل بھی ہے۔ آپ کیسے ہو، آپ بتاؤ جیسے جملوں کا استعمال کیا اہل علم کو زیبا دیتا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آپ کیسے ہو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو، کیا یہ کہنا درست ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں شعری حوالوں سے تو گفتگو کروں گا ہی، ساتھ ہی ساتھ بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھیں گے شتر گربا ہے کیا چیز۔ شتر کے معنی ہے اونٹ اور گربا کے معنی ہے بلی۔ یہ عمومی اصطلاح ہے جو کہ دو غیر متناسب چیزوں کو یکجا کرنے یا متضاد صفات کو جمع کرنے یا قول و فعل میں مخالفت ہونے کے یا پھر ایسے ہی کسی موقع پر بولی جاتی ہے۔ آپ نے یہاں سمجھا کہ وہ ایسی جگہ بولی جاتی ہے جہاں پر قول و فعل میں تضاد ہو یعنی مخالفت ہو، اور دو ایسی چیزوں کو شامل کیا جائے جو ایک دوسرے سے الٹ ہو۔ ادب کے حوالے سے بھی اسے عیوب سخن میں شمار کیا جاتا ہے۔ ادب اور بالخصوص شعر میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کلمے کے لیے کسی خاص مقصد کے بغیر دو مختلف ضمیروں کو یا تحقیر و تعظیم کے الفاظ کو استعمال کیا جائے۔ تحقیر و تعظیم اس لفظ پر غور کریں گے، یعنی بے عزتی بھی ہوتی ہے اس سے تعظیم بھی ہوتی ہے۔ مثلا شعر میں کسی کو مخاطب کر کے تو کا صیغہ لایا جائے، پھر اسی شعر میں اسی مخاطب کے لیے تم یا آپ کا ذکر کیا جائے، یا کسی غائب کے لیے پہلے اس کا لفظ لا کر اسی شعر میں اسی غائب کے لیے ان یا انہی لایا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہاں نہیں سمجھا ہوگا، تو میں آگے سب کچھ بتا دوں گا، بہت اچھے طریقے سے بتا دوں گا، آپ بے فکر رہیں، آگے دیکھیں۔ ایک شعر ہے ہمارے سامنے، کبھی میری تربت پہ آ جانا تم بھی، تیرے ہجر میں جاں سے جانے لگا ہوں۔ آپ نے یہاں دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے تم بھی اور نیچے لکھا ہوا ہے تیرے، تو آپ کو جان لینا ہے کہ تم کے بدلے جو استعمال ہوتا ہے وہ تمہارے استعمال ہوتا ہے، تو کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ تیرے استعمال ہوتا ہے۔ تو اوپر تو آپ نے دیکھا کہ تم کا استعمال ہے اور نیچے تیرے کا استعمال ہے، تو یہی شتر گربا ہے، کیونکہ تم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تمہارے ہوتا ہے۔ اگر نیچے تیرے ہے تو اوپر ہونا چاہیے کبھی میری تربت پہ آ جانا تو بھی اگر کہیں کہہ دیا جاتا تو یہ شعر درست ہو جاتا۔ تو یہی شتر گربا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس شعر میں مخاطب کے لیے پہلے مصرے میں تم کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں اس کے لیے تیرے کا استعمال ہے۔ اور جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر تو بھی کا استعمال ہو جاتا پہلے مصرے میں تو یہ شعر صحیح ہو جاتا۔ آپ یہاں دیکھیں، تعظیم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ، اور تحقیر کے لیے وہ لفظ ہوتا ہے تم ایک ایسا لفظ ہے جو یا تو برابری والے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اپنے سے چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی خیال نہیں ہوتا، یعنی بڑوں کے لیے تم کا استعمال ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب تم کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو تم کے ساتھ رہے ہو، تو رہے ہو وہ بھی تحقیر ہے، کیونکہ تم جا رہے ہو، تو تم کو ضمیر کو اگر کہیں ہٹا دیں تو بچا کیا؟ رہے ہو۔ ظاہر ہے یہ رہے ہو یہ ضمیر کے مطابق کام کر رہا ہے، تو رہے ہو بھی جو لفظ ہے وہ بھی تحقیر کا لفظ ہے، وہ یا تو برابری کے لیے استعمال ہوگا یا پھر اپنے سے چھوٹے کے لیے استعمال ہوگا۔ اب مثال دیکھیں، تم میرا احسان ماننا کیونکہ میں نے تمہارے لیے یہ چیز خریدی، یہ بالکل صحیح ہے۔ تم اوپر لکھا ہوا ہے تم اور نیچے لکھا ہوا ہے تمہارے، تو تم کے لیے لفظ ہے تمہارے۔ اگر اسے کر دیا جاتا تم میرا احسان ماننا کیونکہ میں نے تیرے لیے یہ چیز خریدی، تو یہ غلط ہو جاتا۔ اسی طرح تو سدا یاد رکھنا کہ تمہیں ہی یہ کام کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ تو سدا یاد رکھنا، تو کے لیے تمہیں کا استعمال نہیں ہوتا،
तुम्हें का इस्तेमाल तुम के लिए होता है, तो अगर तू का इस्तेमाल ऊपर है तो नीचे क्या किया जाता, तुझे का इस्तेमाल करना चाहिए था। तू सदा याद रखना कि तुझे ही ये काम करना है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है उसने मुझसे पूछा तो मैंने उनको जवाब दिया। आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है उसने और नीचे लिखा हुआ है उनको। उसने के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता वो होता उसको, तो ये भी गलत हो गया। तो यही सब शुतुरगुर्बा है। अब बहुत सारे लोग जो मैसेज में मुझे लिखते हैं वो कहते हैं आप मेरे कलाम को देख लेना। देख लेना ये तहक़ीर का लफ्ज़ है और आप ताज़ीमन इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो आप देखें ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं और कभी भी तहक़ीर और ताज़ीम एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप या तो ताज़ीमन जुमले इस्तेमाल करें, वो जुमला जिसमें ताज़ीम हो, जैसे आप मेरे कलाम को देख लें या आप मेरे कलाम देख लें। या फिर आगे है आप कैसे हो, बिल्कुल नहीं, आप एहतरामन है और कैसे हो ये तहक़ीर है। तो आप कैसे हो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ, आप कैसे हैं। अब मैं क्या कहूँ, ये तो फैशन हो चुका है। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं और बहुत फ़ख्र से लिखते हैं, उनको यही लगता है कि शायद वो सही कर रहे हैं। अगर उनको समझा दिया जाए तो वो न जाने कौन कौन सी दलीलें देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर सही हैं तो आप अदब से कोई भी एक दलील देकर दिखाएं, अदब के हवाले से कोई दलील दें। या अभी जो अदब की जो किताबें निकल रही हैं, जो रिसाले हैं, वहाँ आप देखें कि ऐसा कोई भी जुमला इस्तेमाल हुआ है। अगर हुआ है तो चलिए मैं भी मान लूँगा। यहाँ मैंने वाज़े तौर पर समझा दिया है। अगर तू हो तो तू के लिए इस्तेमाल होता है तेरा, तुझे। जुमला देख लें, तू अच्छा है इसलिए तेरा ख्याल रखता हूँ, तुझे पता है। अब यहाँ कहीं कह दिया जाता तू अच्छा है इसलिए तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हें पता है, तो ये गलत हो जाता। तो तू के लिए तेरा और तुझे का इस्तेमाल करना है। और तुम का जब इस्तेमाल हो तो वहाँ पर तुम्हारा या तुम्हें का इस्तेमाल करना है। जैसे तुम अच्छे हो इसलिए तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हें पता है। अगर इसको इस तरह किया जाता कि तुम अच्छे हो इसलिए तेरा ख्याल रखता हूँ, तुझे पता है, तो ये गलत हो जाता। तो आप देख रहे हैं सही यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस कहें तो उसके बदले उसका या उसकी या उसके कुछ भी हो सकता है। और उससे इसकी मिसाल है उससे उसका नाम मत पूछो, उसे बुरा लगेगा। और यही कह दे कि उससे उनका नाम मत पूछो, उन्हें बुरा लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर उन हो तो उनके लिए उनका, उन्हें, उनकी, ये सब आता है। तो यहाँ अगर कहीं कह दें, यहाँ कह रहे हैं कि उनसे उनका नाम मत पूछो, उन्हें बुरा लगेगा, ये दुरुस्त है। और अगर उनमें ये कहा जाए कि उनसे उसका नाम मत पूछो, उसे बुरा लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैं में जो इस्तेमाल होता है वो होता है मेरा, मुझे। तो यहाँ पर है मैं ठीक हूँ, मेरा नाम मत लो, मुझे पता है। बिल्कुल सही है। मैं में देख रहे हैं आप, मेरा, मैं, मुझे तीनों का इस्तेमाल है। और हम में इस्तेमाल होता है हमारा, हमें या हमारी। मैं में मेरी भी हो सकता है, हम में हमारी भी है। तो हमारा और हमें में अगर कहीं कहा जाए कि हम जानते हैं, हमारा कोई नहीं, हमें पता है, तो ये तो दुरुस्त है। लेकिन ये कहा गया कि हम जानते हैं, मेरा कोई नहीं, मुझे पता है, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने पास महफूज भी रख सकते हैं, ताकि कभी अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप इससे मदद ले लें। और अब यहाँ एक शेर आपके सामने है। यह शेर मेरा ही है, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर गलत किया है ताकि आपको समझा दूँ। क्या रखा था किसी और में, मैं रहा तेरा हर दौर में।
तुम मुझे आजमाते रहे, मैं तुम्हें आजमाता रहा। ऊपर के मिसरे को आप देखेंगे, क्या रखा था किसी और में, यानी मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ मैं कि किसी और में क्या रखा था। मैं हर दौर में तेरा था। देख रहे हैं, मैं हर दौर में तेरा था। ऊपर के मिसरे में इस्तेमाल हुआ तेरा, और नीचे क्या है, मैं रहा तेरा हर दौर में। उसके बाद तुम मुझे आजमाते रहे, मैं तुम्हें आजमाता रहा। ऊपर कहा तेरा और नीचे इस्तेमाल हो रहा है तुम और तुम्हें। ये गलत है, तुम्हें भी है, तुम्हें को मैंने इसको ये नहीं किया है, लेकिन तुम्हें भी है। तो तेरा के लिए तुम और तुम्हें, ये बिल्कुल गलत है, और यही शुतुरगुरबा है। और मैं आपको बता दूं कि हसरत मोहानी से पहले ये शुतुरगुरबा का जो ऐब है ये आम हुआ करता था। बहुत उस्ताद शायरों के कलाम में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। जैसे मीर मोमिन खां मोमिन का मशहूर शेर है, जिसे आप कहते थे बावफ़ा, जिसे आप गिनते थे आशना, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आपने देखा ऊपर इस्तेमाल है आपका, और दूसरे मिसरे में इस्तेमाल है तुम्हें। आप और तुम्हें, ये भी शुतुरगुरबा है। यानी यहाँ इसको यही देखा जाता है कि एक जगह ताज़ीम हो और एक जगह तहक़ीर हो, तो वही शुतुरगुरबा है। इसको समझ लेंगे। उस कहेंगे तो ये तहक़ीर में आता है, उन कहेंगे तो ये ताज़ीम में है। और फिर यहाँ एक और चीज़ समझ लें कि हम ताज़ीमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो जमा का सिगा होता है। जैसे भाई जा रहा है, भाई अकेला है तो भाई जा रहा है। लेकिन जब वालिद गिरामी जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं वालिद गिरामी जा रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं। वहाँ पर जा रहे हैं ये तो जमा का सिगा है, लेकिन वाहिद के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें ताज़ीम है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।